ناظرین، ہم مسجد سہلا میں آئے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ سارے نبیوں کا اور ائمہ طاہرین کا آنا جانا رہا ہے، اور سارے ائمہ کے تقریباً یہاں پر مقامات ہیں، اور ہر مقام پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم پہنچے ہیں، اور اس کے بعد آپ داخل ہوں گے مسجد میں، اور مولانا بھی اس کے بارے میں قاعدے سے تعارف کرائیں گے۔ یہ جو مسجد سہلا ہے، یہاں پر تمام انبیاء کا آنا جانا ہے، اور یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء سے توسل قائم ہوتا ہے، ائمہ سے توسل قائم ہوتا ہے، پروردگار سے رابطہ قائم انسان کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہماری توجہ کیسی ہے۔ مطلب میرے کہنے کا اصلی نچوڑ یہ ہے کہ اگر ائمہ سے رابطہ قائم ہے تو انسان ضرور پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے۔ پروردگار سے یعنی رابطے کا مطلب یہ ہوا کہ جس نماز میں جب ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم خدا بند عالم سے بات کر رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں رابطہ یہی ہوتا ہے۔ مسجد سہلا ہم جاتے ہوئے مسجد کی طرف اس کا صحن دیکھیں، اور یہ وہ مسجد ہے جس سے تمام مقام پر تمام نمازیوں کو حجت العصر سے ملاقات کا موقع بھی ہوتا ہے، اور بس صرف خشوع اور خضوع کی نماز کے وقت ضرورت۔ ناظرین، اب آپ زیارت کریں گے جہاں پر ہم جا رہے ہیں، یہ مقام حجت العصر ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے امام زمانہ آتے تھے، اور یہ مقام ہے ان کی عبادت کا، اس لیے اس کو ایک اس طرح سے زری کی طرح سے کر دیا گیا ہے۔ یہ مقام امام زمانہ کا ہے۔ پروردگارہ ہمیں ان سے توسل قائم کرے، اور آپ کے ظہور میں عجلت فرمائے پروردگارہ، اور ہم اور ہمارے بچے امام زمانہ کے ناصرین میں شامل ہوں، امام زمانہ کی اس فوج میں رہیں جو مولا آئیں گے اور دشمنوں سے بدلہ لیں گے، ظلم کو ختم کریں گے۔ دنیا میں بول بالا ائمہ طاہرین کا ہوگا، دنیا میں ایک اجالا ہوگا، وہ اجالا ہوگا جس کا انتظار ہے، وہ روشنی آئے گی، وہ اندھیرا ہٹے گا۔ بار الہٰ ہماری اس دعا کو قبول کرنا، ہمارے امام زمانہ جلد سے جلد ظہور کریں۔ یہ وہ مقام ہے حجت العصر کے مقام سے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمیں امام زمانہ سے توسل حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بھی آتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے عزت کے لیے دعائیں نماز پڑھتے ہیں، عزت کی شفاعت کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی، ہمارے بچے سب کامیاب ہوں، پہچانے جائیں۔ امام زمانہ کے ناصرین میں ہماری یہ دعا رہے گی کہ جو بھی مولا کے چاہنے والے ہیں شمار ناصرین میں دعا۔ یہ مقام ادریس علیہ السلام تو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر خیاطی کا کام کرتے تھے۔ وہ مقام خضر علیہ السلام ہے، نماز پڑھی گئی، اور یہ حجت العصر کا مقام ہے جس پہ نماز ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لوگوں کا آتا ہوا کارواں، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پر جناب مقام ادریس علیہ السلام جو
वहाँ पर बैठकर कपड़ा सिला करते थे, खैयाती का काम करते थे जनाब इदरीस। इसलिए ये मकाम और उनकी खैयाती इतनी बुलंद हुई कि बीबी अर्श पर बुला लिए गए और बीबी ज़हरा के कपड़े सिले हैं। ये मकाम है जनाब इदरीस का। मस्जिद को आप वसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितनी वसी है। यहाँ से छत की बुलंदी और ये जितने इसमें नमाजियों के लिए ऐसे तक। मस्जिद के मुतालिक थोड़ा सा बयान करेंगे। इब्तिदा में ये अर्ज़ कर दें, मस्जिद सहला अंदर दाखिल होने के कुछ अमाल, तो वो अमाल हम यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं कि पहले ये मस्जिद की हदूद नहीं है जहाँ पे हम खड़े, जहाँ से टाइल्स खत्म होते हैं यहाँ से मस्जिद की हदूद शरई शुरू होती है। तो सबसे पहले जब अंदर आएंगे तो सीधा पैर रखेंगे अंदर जाने के लिए। उससे पहले के जो अमाल है हमारे साथ में एक एक लफ्ज़ सुने, अपने मरहूमीन अज़ीज़ व अक़रबा को नियत में शामिल करें कि जिस वक्त जो हम अमाल बजा ला रहे हैं। यहाँ मैं एक जुमला कह के अमाल शुरू कर रहा हूँ। ये वो मकाम है कि जहाँ पे मुतअद्दिद मरतबा यानी कई मरतबा इमाम से मुलाकात हुई उलमा की। ये मस्जिद है, इस वक्त सुबह का टाइम है, बज़ाहिर भीड़ नहीं है, बहुत खलवत का टाइम है। पूरे अमाल जो भी करने हैं हमें मुश्किल से 40 मिनट से 1 घंटे का अमाल है, और कम खाली है तो और जल्दी आधे घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। ज़रूरी है अपने ज़हनी तबादुल को अल्लाह की तरफ और ख़ुसूसन इमाम ज़माना की तरफ रखें, इसलिए कि किसी को भी नहीं मालूम है किसके ऊपर इमाम का लुत्फ़ हो सकता है इस मस्जिद के अंदर। फिर बाकी हिस्ट्री इंशाल्लाह चाहे कह दिया बच ही नहीं सकते। आए मस्जिद कूफा में वो अमाल बदल आए तवस्सुल के इमाम ज़माना से, और ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल शिफा मिल गई है उनको, बिल्कुल उनकी रिपोर्टें तब्दील हो गई हैं। तो मस्जिद सहला में जैसे कल आपने मस्जिद कूफा में अमाल अंजाम दिए थे, मुसल्ले थे, ये सेंटर मस्जिद का जहाँ पे हम नमाज अदा कर रहे हैं, इस मुसल्ले का नाम है मुसल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। तो यहीं पे वाजिब नमाज अदा करेंगे और फिर यहीं से हर जगह आगे चलते रहेंगे। हर जगह पे एक छोटी छोटी दुआएं मुसल्ले पर वो अदा करेंगे। ये बता दूं मस्जिदें बहुत सारे वाक़यात मुझे तफसील में नहीं जाना है, सिर्फ मार्फत के लिए। जब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़ुहूर होगा, एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाला, ज़ुहूर होगा। आपकी सलवात से मुझे लग रहा है ना अभी आपका कनेक्शन नहीं हो रहा। इमाम का ज़ुहूर होगा। आप जानते हैं कि इस्लामी हुकूमत का जो कैपिटल होगा, जब पूरी दुनिया में एक हुकूमत नाफिज होगी, वो शहर कूफा होगा। जब इमाम ज़माना की आलमी हुकूमत नाफिज होगी दुनिया में, उस ज़माने में जो आलमी हुकूमत का कैपिटल होगा वो शहर कूफा होगा। और मस्जिद कूफा में मौला इमामत कराएंगे, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में मरकज़ था मस्जिद कूफा। ये जो मस्जिद सहला है, रिवायात में यह है कि जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे इमाम का मस्कन करार पाएगी, यानी इमाम का घर बन जाएगी मस्जिद। इमाम जब आएंगे इसी मस्जिद के अंदर क़याम फरमाएंगे ज़ुहूर के बाद। तो अंदर एक मकाम है, मकाम इमाम ज़माना, इंशाअल्लाह भी हम जाएंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, वहाँ पे ज़ियारत करेंगे। इस वक्त मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, बहुत वाक़यात हैं कि जहाँ पे इमाम का दीदार हुआ है उलमा को। नजफ़ में एक आलिम है, एक मुज्तहिद थे, हज़रत आयतुल्लाह सैयद महदी बहरुल उलूम। बहरुल उलूम उनका नाम नहीं था, टाइटल था। टाइटल क्यों पड़ा? उनका नाम था मेहदी। उन्होंने कोई अमल अंजाम दिया, इमाम ज़माना से तवस्सुल किया, इसलिए कि रिवायात में है कि अगर कोई 40 शब बुध यानी मंगल के रोज़ शब बुध मस्जिद सहला में आए तो फिर ज़रूरी है कि इमाम की उससे मुलाकात हो और इमाम का लुत्फ़ हो उसके ऊपर। 40 शब बुध वो यहाँ पे आए। उमूमन जब आप यहाँ पे आएंगे शब बुध, पैर रखने की जगह नहीं होती है, सारे हौज़ात के तुल्लाब उलमा ज़ायरीन का एक हुजूम होता है यहाँ पर। वो आए और उनके कुछ मसाइल थे जो इमाम से उन्होंने ये अमल अंजाम दिया था। कहते हैं जब 40वें शब बुध आए, इमाम से मुलाकात नहीं हुई, तो वो दुआएं पढ़ रहे थे, मुनाजात कर रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे मौला की तरफ, अश्कबार रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मौला आपका दीदार तो नहीं हुआ। कहते हैं कि सारा मजमा निकल गया। रात को जब मस्जिद बंद होने का उस ज़माने में
पुराने ज़माने में टाइम आया, एक खादिम आया और खादिम ने आकर के कहा आपको इमाम बुला रहे। जो मकाम इमाम ज़माना है, देखा कि इमाम मासूर दुआएं, मतलब जैसे मफातुल जिरान के अंदर दुआएं हम लोग जानते हैं कौन सी दुआ है, जब अल्फाज सुनते हैं मतलब ये दुआ कुमैल है, उसमें तमीज़ कर सकते हैं, दुआ अदीला है। इसी तरीके से वो कहते हैं इमाम जो दुआएं पढ़ रहे थे वो अलग दुआएं थी, यानी इमाम गोया खुद अपनी तरफ से जो चीज़ें पढ़ लेते, कह रहे मेरी समझ में नहीं आ रही तो वो क्या कलिमात हैं। मैं जा कर के हैबत थी मेरे ऊपर खड़ा हो गया तो इमाम ने मुझे बुलाया और कहा मुझसे करीब आओ। तो कहते हैं मेरी आंखें खीर थी, मैं आगे बढ़ा, इमाम ने कहा घबरा क्यों रहे और करीब आओ। तो सैयद मेहदी कहते हैं कि इतना करीब किया इमाम ने मुझे कि मुझे अपने बगलगीर कर लिए, सीने से सीना मिला दिया। और जैसे ही सीने से सीना मिला इमाम से, कहते हैं दुनिया का हर इल्म मेरे सामने ऐसे जैसे बहता हुआ समंदर, हर चीज़ मेरे सामने ये थी, इल्म तफसीर कुरान जो जिस पे इतलाक इल्म होता है, सिर्फ सीना लगा के इमाम से मस होकर के उस दिन से सैयद मेहदी को मेहदी बहरुल उलूम, बहरुल उलूम का मतलब क्या है, इल्म का समंदर, इल्म का उलूम का समंदर, तो उलूम का समंदर करार पाए इमाम ज़माना की मुलाकात से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अमाल बदल आएंगे। हमारी अमाल सिर्फ ये नहीं है कि आए ज़ियारत पर, बेशक फजीलत रखते हैं आप ज़री की ज़ियारत करें, असल है आपका रूहानी कनेक्शन, आपका इत्तिसाल हकीकी, आपकी मानवियत कि जब आप यहाँ पे अमाल बदल आए तो खुद अपने इस नफ्स के अंदर, हम अपने दिल के अंदर फील करें कि नहीं हमें यहाँ पे तिस्कीन महसूस हो रही है। हम इस तरह से अमल बदल आए, अपने जहन को ऐसा रखें इमाम की तरफ कि जब यहाँ से निकले खुद फीलिंग आए कि बिल्कुल गुनाह झड़ चुके हैं हमारे, हम इमाम के हो चुके हैं। इस नीयत के साथ जब आप अमाल बदल आएंगे तो फिर वो अमाल अहमियत भी रखते हैं और हमारी ज़िंदगी को दुनिया में भी तब्दील करें और आखिरत में भी हमारे लिए ज़्यादा करार पाएँ। इमाम का घर होगी ये मस्जिद कूफा, यहीं से इमाम हुकूमत करेंगे। तो खुदा करे कि जब इमाम का ज़हूर हो और इमाम आएंगे तशरीफ़ लाएंगे, हम चाहे जहाँ हों, अपने मुल्कों में हों या कब्रों में सो रहे हों, उस वक्त इमाम ज़माना की याद में, तड़प में जो लोग ज़िंदगी बसर करते हैं दुनिया में, इमाम एक एक को कब्रों से उठाएंगे। हुक्म होगा जो भी आशिक़ इमाम मेहदी दुनिया में इमाम के इंतज़ार में ज़िंदगी बसर करेगा, तो ये एक सवाल है कि अगर हम इंतज़ार करते रहें मर जाएं और इमाम ना आए तो हमारा तो इंतज़ार बेकार हो गया, इमाम तो आए नहीं, ज़ुहूर नहीं हुआ। रिवायतों में है कि जो आशिक़ान इमाम मेहदी इस दुनिया में तड़प में ज़िंदगी बसर करेंगे, ऐसे लोगों की कब्रों पर खुद इमाम जाएंगे चल के ज़ुहूर के बाद, और आवाज़ देगा एक फ़रिश्ता, ए आशिक़ान इमाम मेहदी, ए शियाने आले मोहम्मद, तुम तड़प रहे थे दुनिया में जब जिंदा थे कि हम इमाम की आलमी हुकूमत को देखें, आदिलाना हुकूमत को देखें, उस हुकूमत के लिए अपने किरदार से कुछ कर सकें, तो आज तुम्हें इख्तियार है, रिवायत का जुमला है, चाहो तो कब्र में लेटे रहो, अल्लाह की नेमतों से इस्तेफादा करो, और चाहो तो खड़े हो जाओ इमाम ज़माना की हुकूमत में, लश्कर में शामिल हो जाओ। खुदा करे कि जब इमाम तशरीफ़ लाएं हम इमाम के लश्कर में शरीक हों, हम उन अफराद में हो कि हमारे गुनाह महू हो जाएं। इसलिए कि जब आप ऐसे मकामात पे, मस्जिद सहला में, मस्जिद कूफा में, हरम इमाम हुसैन में, मौला अली के हरम में आके अलैहिमुस्सलाम ज़ियारत बदल आते हैं, आमाल बदल आते हैं, यकीन है ये अकीदा मुस्तहकम है, ये खिताबत नहीं है, आपके गुनाह मिट जाते हैं। आप ऐसे हो जाते हैं जैसे बच्चा बतने मादर से पैदा हुआ है, लेकिन इस शर्त के साथ कि इंसान ये अहद करे इमाम से कि मौला अब आपने हमें तब्दील कर दिया, ये ज़ियारत की वजह से हमें शरफ मिला है कि गुनाह ख़त्म हो गए, हम आइंदा अहद करते हैं कि हम गुनाह जानबूझ के बजा नहीं लाएंगे। आशिक़ इमाम मेहदी की सबसे पहली और बुनियादी अलामत यह है, बात तमाम कर रहा हूँ मैं, सबसे पहली और बुनियादी अलामत यह है कि वाजिबात को तर्क न करे। बज़ाहिर ये सामने की चीज़ है, लेकिन इमाम ज़माना की तरफ कदम बढ़ने के लिए आप चाहते हैं कि इमाम भी आपकी तरफ बढ़े, आप भी इमाम की तरफ बढ़ें। जो सबसे पहली एक चीज़ आज यहाँ से लेकर के जाएं, कोशिश करें कि नमाज अव्वल वक्त अदा करनी है, नमाज छोड़नी नहीं है, वाजिब छोड़ना नहीं है। इसीलिए बात तमाम हो गई मेरे, मैं हमेशा अपनी तकारीर में कहता हूँ ज़्यादा आपको जुस्तजू की दीन में ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक फार्मूला बनाए कि आपको वाजिबात छोड़ना नहीं है, हराम के पास जाना नहीं है, वक्त मिले तो मुस्तहब अमल कर ले। वरना अगर इंसान वाजिबात छोड़ेगा नहीं, हराम के करीब नहीं जाएगा,
وقت ہے، خدمت انسانیت ہے، مستحب اعمال ہے، بجا لائیں، اس کا آپ سے سوال نہیں ہے، وہ ایکسٹرا ہے. اصل ہے اس دائرے میں اگر انسان اپنی زندگی میں ہر انسان یہ رکھے کہ واجبات ترک نہ ہو، کوئی بھی واجب جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اور حرام ہمیں کرنا نہیں ہے. خدا کی قسم ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کو امام زمانہ بعد ظہور قبروں سے اٹھائیں گے اور اپنے لشکر میں شریک قرار دیں گے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. نماز پڑھ لیتے ہیں. علیہ السلام چوتھے امام یہاں تشریف لائے، اندر جا کے 2 رکعت نماز ہدیہ کریں، پھر ہم رات پڑھیں گے لیڈیز رائٹ پر لیفٹ پر ہدیہ امام زین العابدین علیہ السلام. اللہ آپ زمانہ یہاں پر امام زمانہ آ کر نماز پڑھتے ہیں اور جو اپنی حجتیں بتاتے ہیں، جو اپنی مرادیں لے کے آتے ہیں، امام زمانہ انشاءاللہ ضرور پوری کرتے ہیں. یہ ادھر مردوں کا ہے اور ادھر عورتوں کا تمام اہتمام. امام کو ہدیہ کریں، اپنی حاجات پیش کریں، امام سے التجا کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں یہ دروازے پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی جگہ آ جائیں، یہاں کی دعا پڑھا کے پھر اگلے مصلی پہ جائیں گے. بسم اللہ. اس کی حدود بہت بڑی ہے. ہم مسجد کے دوسرے حصے کی طرف ہم داخل ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ مسجد کا دوسرا حصہ ہے. دیکھیے بناوٹ میں ایک دم ایک طرح کا ہے، نظر نہیں آتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہم کہاں پر کھڑے. یہ دن کے اجالے میں سورج طلوع ہوتے ہوئے ایک نظارہ ہے مسجد کے اندر. یہاں یہ جتنے یہ خانے بنے ہوئے ہیں یہ کسی نہ کسی نبی کے نام سے منسوب ہے، کسی امام کے نام سے منسوب ہے. مقام ہے سب کے الگ الگ. ان مقاموں پہ جا کے آپ نماز پڑھیں اور توسل حاصل کریں. ضرور حاصل ہوتا ہے توسل. ہماری بے صبری ہمیں اس کو پورا نہیں ہونے دیتی. امام ہماری ضرور سنتے. یہ مینار دیکھیے سورج طلوع ہو چکا ہے، اب روشنی بجھنے والی ہے. اس کی حدود دیکھیں. جتنے بھی پیغمبر یہاں آئے اور ائمہ ہر ایک نے اس مصلی پہ عبادت کی ہے، تو اس کا نام ہے مقام انبیاء و صالحین. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ پہ اللہ اجازت پڑھیں. یہ ہے مقام انبیاء اور صالحین. اس میں ہم داخل ہوتے ہوئے انشاءاللہ نماز کا شرف حاصل کریں گے. یہ ہے اس میں سارے انبیاء اور صالحین آتے رہے ہیں. جناب خضر، جناب حجت عصر اور تمام انبیاء، جناب جعفر صادق علیہ السلام، جناب ادریس، جناب ابراہیم کا مقام. یہ باہر کا حصہ ہے. یہ مسجد آ جاؤ